السلام علیکم عزیز ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کرناٹکا ٹی ای ٹی اور سی ٹی ٹی کے لیے اردو میڈیم طلباء کے لیے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو کیا ہے، سی ٹی ٹی میں چلنے والے سوالاتی پرچے کو حل کیا جائے گا، اور یہ سوالاتی پرچے کیا ہے، دسمبر 2023 میں معاف کیجیے گا، دسمبر 2022 میں شفٹ وائز چلنے والے تمام اردو لینگویج کے سوالاتی پرچوں کو ہم اس ویڈیو میں حل کیے ہیں۔ تو کل کیا ہے، یہاں پر 6 سوالاتی پرچے جو شفٹ وائز چلے ہیں دسمبر 2022 میں سی ٹی ٹی کے امتحان میں، ان تمام سوالاتی پرچوں کو ہم نے یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اب ان کو ایک ایک کر کے بحث کریں گے۔ خاص کر کے اس ویڈیو میں ہم پیڈاگوجی کے سیشن کو ہی حل کریں گے، کیونکہ تھیوری سیشن تو کیا ہے بہت ایزی ہوتا ہے، وہیں پر پیسج ہوتا ہے، حل کر سکتے ہیں، لیکن پیڈاگوجی کیا ہے تھوڑا سمجھ کر ان کے نشانات کو حل کرنا پڑتا ہے، سمجھ کر کیا ہے ان سوالات کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو چلو دیکھیں کیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا ہے 24/1/2023 میں چلنے والے سوالاتی پرچے کو دیکھیں گے۔ اردو پیڈاگوجی تو 106 سے 120 کے درمیان فرسٹ لینگویج پیپر 2 کا کوشچن پیپر ہے، فرسٹ لینگویج۔ تو پہلا سوال، لوگوں کا ایک آدھ جو زبان کے استعمال کے یکساں اصول پر اتفاق کرتا ہے، لوگوں کا ایک آدھ جو زبان کے استعمال کے یکساں اصول پر اتفاق رکھتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کی شکل یا بولنے کی برادری، بات چیت میں زبان کی شکل یا زبان کی برادری؟ کون سا جواب صحیح ہے اس میں دیکھیے گا، لوگوں کا آدھ یعنی آدھے لوگ جو زبان کے استعمال کے یکساں اصول پر اتفاق کرتے ہیں، انہیں کیا ہے، بولنے کی برادری کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ بولنے کی برادری۔ بولنے کی شکل کیا ہے؟ بولنے کا انداز ہو سکتا ہے، بولنے کی شکل، ہاں، اور بات چیت کی شکل بھی نہیں آ سکتا، بات چیت میں زبان کی شکل۔ تو دوسرا آپشن صحیح ہے۔ اور اس میں جتنے بھی آپ کو کی آنسرس دکھا رہا ہوں، یہ سی ٹی ٹی ویب سائٹ کی جانب سے شائع کردہ کی آنسرس، ایگزیکٹ کی آنسرس ہیں۔ تو چلو ہم ایک ایک کر کے حل کریں گے۔ ہاں ہاں، تو اگلا سوال ہمارا دیکھیے گا، ایک بچہ پڑھنے کے طریقوں کی آموزش کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ پڑھنے کے طریقوں کی آموزش کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا استاد الفاظ پہچاننے کی مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے اس کی مدد کر رہا ہے، کہ الفاظ پہچاننے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے۔ کچھ ہفتے بعد پڑھنے کا اہل ہو جاتا ہے، مدد کے بغیر اور مدد کی وجہ سے کر سکنے کی صلاحیت میں فرق کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدد کے بغیر اور مدد کی وجہ سے کر سکنے، یعنی جو طلبہ کوشش کی ہے اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ ماہرانہ آموزش کا خطہ، یا مدد، یا قریب ترین ترقی کا خطہ، یا زبان کے اکتساب کا اعلیٰ کار؟ یہاں پر دیکھیے گا، ماہرانہ آموزش کا خطہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر مہارت تو نہیں تھی بچے میں شروع میں، وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، پڑھنے کی کیا ہے کوشش کر رہا تھا۔ اور مدد، لیکن معلم تو مکمل طور پر مدد نہیں، معلم صرف کیا ہے ایک رہنما کار تھا، مدد کر رہا تھا تھوڑی بہت۔ لیکن یہاں پر قریب ترین ترقی کا خطہ ہے، بچہ کیا ہے، استاد اس کو پہچانے کے مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، لیکن ہفتے کے بعد بچہ کیا ہے پڑھنے کے اہل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے، قریب ترین ترقی کا خطہ صحیح جواب ہے۔ تیسرا آپشن صحیح ہے، قریب ترین ترقی کا خطہ۔ اگلا سوال، چومسکی کا سوال دیکھیے۔ چومسکی کا سوال کیا ہے؟ چومسکی کے مطابق انسانی ذہن میں ذہنی قواعد ہوتے ہیں، انسانی ذہن کے ذہنی قواعد ہوتے ہیں، گرامرس پایا جاتا ہے انسان کے ذہن میں، جو اس کی زبان کے اکتساب میں مدد کرتے ہیں،
زبان کو سیکھنے میں کیا اس کی مدد کرتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے علمی قواعد کہتے ہیں یا عالمگیر قواعد کہتے ہیں, ذہنی قواعد کہتے ہیں یا فقیہ قواعد کہتے ہیں. دیکھیے گا, علمی قواعد یعنی جو سیکھ کر پایا جاتا ہے. ہاں, عالمگیر قواعد جو ذہن میں موجود ہوتا ہے پہلے, یعنی بچوں کو ہم جو گرامر سکھائیں گے بچے یا طلبہ یا پیپلز بآسانی اس گرامر کو, اس قواعد کو سیکھ لیں گے. اس لحاظ سے کیا ہے, یہ دوسرا آپشن صحیح ہے. کیا ہے دوسرا آپشن صحیح ہے, عالمگیر قواعد. یاد رکھیے گا. اگلا سوال, شبنم ٹرین کے ٹائم ٹیبل کو پڑھ رہی ہے. ٹرین میں جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کو شبنم نامی طالبہ پڑھ رہی ہے تاکہ جے پور جانے کے لیے 2 ٹکٹ بک کر سکے. ہاں, اس مطالعے کو کہا جاتا ہے کون سا؟ سرسری مطالعہ, غائر مطالعہ, توسیعی مطالعہ, شراکتی مطالعہ. کون سا ہے اس میں؟ دیکھیے گا, یہاں پر سرسری یعنی صرف دیکھ کر چھوڑنا. سرسری کا مطلب صرف دیکھ کر چھوڑنا. سرسری کا مطلب صرف دیکھ کر چھوڑنا. غائر کا مطلب, شاید آپ, میں بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. غائر کا مطلب ہے, ہاں, غائر کا مطلب ہے گہرا. یہاں پر طالب علم کیا کر رہی ہے؟ ٹکٹ بک کرنے کے لیے, کیا ہے, ٹکٹ بک کرنے کے لیے مطالعہ کر رہی ہے, یعنی گہرا مطالعہ کر رہی ہے. مطالعہ مطلب پڑھ رہی ہے, کتنا ٹکٹ ہوگا یہاں سے وہاں تک. تو اس لحاظ سے دوسرا آپشن صحیح ہے. یہاں پر توسیعی مطالعہ یعنی ایک مضمون دیا جاتا ہے, اس کو تفصیل سے پڑھنا توسیعی مطالعہ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد شراکتی مطالعہ یعنی مطالعے میں شریک ہونا, شامل ہونا. چند بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آ کر دوسرے ان بچوں کے اندر کیا ہے, اور ایک بچہ جو پڑھنے کی خواہش مند ہے وہ شریک ہوتا ہے. اسے شراکتی مطالعہ کہا جاتا ہے. یا کوئی مضمون پڑھ رہا ہے تو دوسرا مضمون اس کو اور پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, وہ شراکتی مطالعہ کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر دوسرا آپشن صحیح ہے, غائرانہ مطالعہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا, غائر کی جمع کیا ہے؟ غائرین. یہ بھی پوچھتے ہیں امتحان میں, ان کے جمع کیا ہے, کیا اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھیں. اگلا سوال, 7ویں جماعت کا استاد اپنے طلبہ سے ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے. کیا اقتباس؟ درج ذیل میں سے کسے لکھنے کی پہلا قدم ہونا چاہیے؟ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ مسودہ تیار کرنا, ذہنی نقشہ بندی, نظر ثانی, ایڈیٹنگ. دیکھیے گا, کوئی اقتباس لکھنے سے پہلے کیا ہے, ہمیں پلان کرنا چاہیے پہلے. تو یہاں پر یہ ذہنی نقشہ بندی کیا ہے, ذہن میں نقشہ نکالنا ہے پہلے, یہ فرسٹ آنا چاہیے. اور اس کے بعد اس کا مسودہ تیار کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر. اور تیسرے نمبر پر نظر ثانی, اور چوتھے نمبر پر کیا ہے, ایڈیٹنگ. ایسا آ سکتا ہے, یا ایسا نہیں, یہاں پر کیا ہے, یہ چوتھے نمبر پر نظر ثانی آخر میں. تیسرے نمبر پر کیا ہے, مسودہ تیار کرنے کے بعد اس پر ایڈٹ کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر پہلا پوچھا گیا ہے پہلا قدم کیا ہے, یہ دوسرا ذہنی نقشہ سازی. اس لحاظ سے دوسرا آپشن صحیح ہے. اور یہ ترتیب ہے جو اقتباس کو لکھنے کے لیے, کسی بھی اقتباس یا مضمون کو لکھنے سے پہلے کیا ہے, ذہنی نقشہ بنانا ہے, مسودہ تیار کرنا ہے, اور ایڈٹ کرنا ہے, اس میں آخر میں نظر ثانی کرنا ہے. یہ چوتھا آپشن, دوسرا آپشن صحیح ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کیا ہے ہمارا اگلا سوال, دیکھیں گے. زبان کی آموزش کا تعمیریت پسند نظریہ فروغ دیتا ہے. تعمیریت پسند نظریہ, استاد مرکوز اندازہ نظر کو یا آموزگار مرکوز اندازہ نظر. یہاں پر آموزگار کا مطلب ہے سیکھنے والا, طالب علم. یاد رکھیے گا, خاموش رہنے کے چلن کو
खामोश रहने का चलन तो क्या है, तामीरत पसंद में आता ही नहीं। क्लासरूम में हंगामा भी नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारा कौन सा सवाल होगा, जवाब होगा? तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो बताया गया है, इसमें यहाँ पर उस्ताद मरकूज भी नहीं होता, इस लिहाज से आमोजगार का मतलब है आमोजिश, यानी सीखना, सीखने वाला, सीखने वाला। इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है। छठी जमात के उस्ताद को अपने तलबा की सुनने की महारतों का अंदाजा कदर करना है। क्या, छठी जमात के तलबा को क्या, सुनने की महारत का अंदाजा लगाना है, कदर पैमाई करना है। दरअसल में से कौन सी सरगर्मी सुनने की महारतों के अंदाजा कदर के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब होगी? उस्ताद तलबा को एक तस्वीर दिखाकर उसकी वजाहत के लिए कहना है, या उस्ताद तलबा के मुकम्मल मवाद पर मुबनी जदौल को मुकम्मल करने के लिए कहना है, या पर देखिएगा उस्ताद मुकम्मल मवाद पर मुबनी जदौल को मुकम्मल करना, यह हरगिज नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ देखेंगे। हाँ, सुनने पर, हाँ इसमें देखिए सुनने की महारत का अंदाजा लगाना है, तलबा को एक तस्वीर दिखाकर उसकी वजाहत करना है, तस्वीर दिखाना है, तस्वीर दिखाकर, दिखाने से बच्चा सुनता नहीं, सिर्फ सोचता है। यहाँ पर क्या करता है, सोच पैदा होती है तलबा में, क्या है, सोच, हाँ सोच पैदा होती है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन उस्ताद तलबा के मुकम्मल मवाद पर मुबनी जदौल को मुकम्मल करने के लिए कहता है, मवाद पर मुबनी। हाँ, और इसमें तीसरा उस्ताद तलबा से पर्दे पर देखते हुए माइम की वजाहत के लिए कहता है, पर्दे में जो भी माइम दिखता है, तस्वीर दिखती है या नक्शा दिखता है, उसकी वजाहत करने के लिए कहता है। उस्ताद तलबा से दिए हुए मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहता है। देखिएगा वजाहत करना, माइम की वजाहत करना, यहाँ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, ये तीनों क्या है, बोलने की महारत को जांचना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जदौल को मुकम्मल करना, जदौल तभी मुकम्मल किया जा सकता है जब वो बेहतरीन सही अंदाज में सुने हो, तो सुनने वाले बच्चे ही जदौल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, ये दूसरा ऑप्शन सही है, सुनने वाले बच्चे क्या है, जदौल को मुकम्मल कर दें, यानी जो सही सुनेगा वो सही लिखेगा या सही बोलेगा। इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे दीवारों और कापियों में गोदते रहते हैं, लिखते रहते हैं दीवारों में, कापियों में, उसे कहा जाता है गोदते रहना। गोदते रहना मतलब जिस तरह से चाहे उस तरह से लिखना है, बच्चे क्या है लखेरा मारना है, जैसे वो उनकी मर्जी है वैसे क्या है कापियों में इस तरह से लखेरा मारना है, लिखना करते हैं बच्चे, कहाँ, कापियों में। उसे क्या कहा जाता है? वक्त का मुकम्मल ज़िया और उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर हौसला शिकनी का बात नहीं आनी चाहिए, ये इस लिहाज से पहला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब उसके बाद अगला है नुक्ता, लिखने की आमोजिश का इब्तिदाई मरहला और औराक की हौसला अफजाई होनी चाहिए, और एक की हौसला अफजाई होनी चाहिए। यहाँ पर हौसला अफजाई अच्छी बात है, ये इब्तिदाई मरहला भी होता है। कुल हल्की महारतों के फ़रोग़ का मरहला, कुल हल्की महारतों पर नहीं होती, सिर्फ क्या है वहाँ पर क्या गोदते हैं बच्चे, सिर्फ कैसा होना वैसा लिखते हैं, जैसे आटा गूंदना कहते हैं उस तरीके से गोदना। एक बुरी आदत है,
जिसे बच्चों को करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बुरी आदत तो नहीं है, बच्चे मशक कर रहे हैं, यानी उंगलियों से लिखने की मशक तो नहीं है, लेकिन वो एक आदत पड़ गई है शुरू शुरू में। बच्चे क्या है, वो इब्तिदाई मरहला होता है, इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, जबान में आवाज की सबसे छोटी बामानी इकाई क्या है? सबसे छोटी बामानी इकाई, शक्लिया, सूतिया, फिक्रा और मजियात। शक्लिया मतलब शक्ल से आया, क्या, शक्ल से, हाँ। और सूतिया मतलब सूत, सूत मतलब आवाज। तो यहाँ पर क्या है, जबान में आवाज की सबसे छोटी इकाई सूतिया, तो दूसरा ऑप्शन सही है। फिक्रा मतलब जुमला जो लिखते हैं, हम कहते हैं। मजियात वगैरह, ये तमाम क्या है, इसमें आते हैं। फिक्रा मतलब देखेंगे इनके मतलब है। इस लिहाज से यहाँ पर फिक्रे का मतलब है, फिक्रे का फिक्रे का मतलब क्या है, इबारत का टुकड़ा, क्या है, टुकड़ा। मजियात मतलब एक मजमून के मुताबिक होता है। तो इस लिहाज से क्या है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ? अगला सवाल, जबान की फरोग में, जबान की फरोग के माक़बल लिसानी मरहलों में शामिल है मुख्तसर बातचीत, खुद रहनुमाई याफ्ता बातचीत, हाँ, या दो अल्फाज वाले जुमले, आवाज़ें निकालना और तितलाना। यानी क्या है, लिसानी में जबान की फरोग के माक़बल लिसानी, सुनने से पहले का मरहला क्या है, सुनने के, ये मुख्तसर बातचीत क्या है, सुनकर बात करता है। खुद रहनुमाई याफ्ता बातचीत, वो तो ज़्यादा सुनकर मालूमात करके, दो दो जुमले वो भी सुनकर। तो सबसे सुनने से कबल क्या है, सुनने से पहले का मरहला चौथा ऑप्शन से है, आवाज़ें निकालना और तितलाना। बच्चे सुनने से पहले का मरहला आ ऊ ई कहते हैं ना बच्चे, बा 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 ता ता ता, ऐसे अल्फाज निकालते हैं, क्योंकि सुनने से पहले के मरहले हैं। अगला सवाल, जबान की आमोश का वो तरीका जो आमोजकारों को मुफीद गुफ्तगू में शिरकत का मौका फराहम करे। आमोजगार को मुफीद मतलब फ़ायदा पहुंचाने वाले मौके फराहम करे और असल ज़िंदगी के हालात का सामना करने में मदद करता है, वो है, वो क्या है, सामना करने में मदद करने वाला साख्तियाती तरीका है, या या रास्त तरीका है, तरसीली तरीका है, कवायद के इतलाक़ का तरीका है। तो यहाँ पर इन तरीकों में साख साख्तियाती तरीका मतलब साख्त निकालना है, हाँ। रास्त तरीका मतलब सीधे बात करना। तरसीली तरीका जो बातचीत की जाती है, आसान गुफ्तगू कहते हैं, आसान बात। तो इस लिहाज से कवायद के इतलाक़ का तरीका मतलब कवायद के ज़रिए कवायद के उसूलों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करना, वो कवायद के इतलाक़ का तरीका कहलाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, तरसीली तरीका। गुफ्तगू में शिरकत का मौका क्या है, मुफीद गुफ्तगू में शिरकत का मौका तरसीली तरीका है। और उसके बाद अगला सवाल, एक उस्ताद देखता है बच्चे लिखते हैं इमले की गलतियां कर रहे, लिखते हैं इमले की गलतियां, इमला क्या है, यानी अल्फाज, सही अल्फाजों का लफ्ज है, इमला कहलाता है। इस परेशानी को रफा करने के लिए उस्ताद को तदरीस की कौन सी हिकमत अमली अपनानी है, क्या, इमले की गलतियों से बचाने के लिए लफ्ज की ड्रिल करना चाहिए, जहन की नक्शाबंदी करना चाहिए, बावाज़ बुलंद पढ़ना चाहिए। देखिए, बावाज़ बुलंद पढ़ने से सिर्फ सुन सकता है बच्चा, इसकी सही तलफ़ुज़ निकाल सकता है। जहन की नक्शाबंदी मतलब, वो जहन की नक्शाबंदी मतलब जहन में उसका नक्शा बढ़ता है। तलफ़ुज़ को ड्रिल करना चाहिए, मश्क करना चाहिए। लेकिन चौथा क्या है, इमला करना चाहिए, इमला है। इमला सही, इमले की गलती को दूर करने के लिए इमले की सही पहचान कराना ही उसका दुरुस्त हल है, उसका क्या है, दुरुस्त हल है। इसलिए ऐसे चौथा ऑप्शन सही है, इमला। अगला, उस्ताद पर
استاد پری اسکول کے بچوں کو کتاب کی تصویریں دکھاتا ہے اور ان تصویروں کی وضاحت کے لیے کہتا ہے، اس سے طلبا کو مدد ملے گی مؤثر مرسل ہونے کی، کل حرکی مہارتوں کے فروغ کی، ہاتھ سے لکھاوٹ کو بہتر بنانے میں، یا پر اعتماد اور اچھا لکھنے والا بنانے میں۔ کون سا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ تصویروں کے استعمال سے بچوں کو وضاحت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ سب سے بہتر کیا ہے؟ مؤثر مرسل، یعنی ترسیل کی ہوتی ہے، ان کو معلومات آتے ہیں جو کہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلا آپشن مؤثر مرسل ہونے کا۔ لیکن حرکی مہارتیں فروغ نہیں پاتی، ہاتھ سے لکھاوٹ بھی نہیں ہے، تو یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ لکھنے کا تو آتا ہی نہیں، یہاں پر حرکی مہارت میں پہلا آپشن ہی صحیح ہے، لکھ۔ اگلا سوال، تدریس کا وہ طریقہ جس میں زبان کے آموز کاروں کو ان کی موجودہ سطح سے تھوڑا بلند مواد فراہم کیا جاتا ہے، ان کی موجودہ سطح سے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کل جسمانی رد عمل، قابل فہم مواد، مدد، لسانیاتی مدد۔ دیکھیے گا یہاں کیا کہا جا رہا ہے سوال میں، زبان کے آموزگار کو موجودہ سطح سے تھوڑی بلند مواد فراہم کرنا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کل جسمانی رد عمل، مطلب بچہ اس کا جواب دے سکے، ایکشن کا ری ایکشن کرے، یہ کل جسمانی رد عمل آتا ہے۔ لیکن قابل فہم مواد، یہ جواب صحیح ہے، اس کا قابل فہم مواد ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ آگے کی سٹیج میں جانے کے لیے کیا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لحاظ سے دوسرا آپشن صحیح ہے۔ یہ مدد اور لسانی تو یہ نہیں آتا۔ اب اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون بامعنی متن کے پڑھنے کی حکمت عملی میں شامل نہیں ہے؟ بامعنی متن کیا ہے؟ پڑھنے کی حکمت عملی نہیں ہے۔ کون سی؟ پیش قیاسی، تلخیص کرنا، استباط کرنا، ایڈیٹنگ کرنا۔ یہاں پر دیکھیے گا، بامعنی پڑھنے کی حکمت عملی کون سی نہیں ہے؟ پہلا دیکھیے، پیش قیاسی مطلب پڑھنا، قیاس کرنا، سوچنا۔ دوسرا تخلیص مطلب خلاصے سے آیا، خلاصہ کرنا، تخلیص مطلب۔ استباط کا مطلب کیا ہے؟ استباط کا مطلب نتیجہ اخذ کرنا، نتیجہ اخذ کرنا، استباط کا مطلب۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے؟ یہ ایڈٹ کرنا مطلب اس میں ترمیم کرنا، ایڈٹ کرنا۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے؟ بامعنی متن کے پڑھنے میں خلاصہ کرنے کے لیے یا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، پڑھ کر اس میں سوچنے کے لیے کیا ہے؟ بامعنی حکمت عملی ہو سکتی ہے متن میں۔ تو چوتھا آپشن یہاں پر کی آنسر صحیح ہے، چوتھا جواب۔ یہ رہے 24/1/2023 میں چلنے والے سوالاتی پرچہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 17 تاریخ کو چلنے والے سوالاتی پرچہ کو حل کریں گے۔ کیا ہے دیکھیں گے یہاں پر، بچے تعامل مطلب، یہاں دیکھیے تعامل بتایا، تعامل کا مطلب یہاں پر بچے تعامل سے زبان کا حصول کرتے ہیں۔ حصول کرنا مطلب حاصل کرنا، تعامل مطلب عمل کرنا، مل جانا۔ حصول کا مطلب حاصل کرنا، حاصل سے کیا ہے؟ حصول۔ اس نزدیک کی تائید کی، کس نے تائید کی؟ اس نزدیک کی دیکھیں، پیاجے نے کی، یا وائگوسٹکی نے کی، چومسکی نے کی، سکنر نے کی۔ اس میں کیا ہے؟ اس تعامل کے عمل کے اصول کی وضاحت کرنے والا، اس نظریے کی تائید کرنے والے کون ہے؟ وائگوسٹکی۔ کیا ہے؟ وائگوسٹکی۔ اگلا سوال،
एक उस्ताद माह माह का बच्चा एक 7 माह का बच्चा, माफ कीजिएगा, एक 7 माह का बच्चा मसूतों और मानों की मदद से अलापता है। मसूतों और मानव की मदद से क्या है, अलापता है। वो तहसील कौन सी है? यहाँ पर देखिए, अलापना का मतलब क्या है? अलापना अलापना मतलब आवाज का, अलापने का मतलब क्या है? आवाज का उतार चढ़ाव। तो ये कौन सी तहसील हो गई? हाँ, यहाँ पर क्या है? लिसानी बातचीत तो नहीं हो सकती। हाँ, आवाज निकालना भी नहीं है यहाँ पर। सूती है मतलब आवाज निकालना, इसका मतलब भी ये भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा क्या है? 7 माह का बच्चा क्या बात तो नहीं कर सकता सही तरीके से। हाँ, तो यहाँ पर 7 माह का बच्चा क्या है? मसूतों और मानों की मदद से क्या है, जो अलापता है, आवाज निकालने की कोशिश करता है, वो हकलाना कहता है। हकलाना, हकला कर जो बात किया जाता है, हकलाना आदि सारी बात। डैश बात की बहुत सी मुनज़्ज़म बात समझा जाता है। डैश बात को बहुत ही मुनज़्ज़म और बहुत ही मुनज़्ज़म बात समझा जाता है। कौन सी? मुकर्ररा बात को, मुख्तसर बात को, तवील बात को, गैर मुनज़्ज़म बात को। गैर मुनज़्ज़म बात को क्या है, यहाँ पर मुनज़्ज़म नहीं है, मुनज़्ज़म समझा जाए। तवील बात को क्या है, बहुत ही मुनज़्ज़म बात नहीं कर सकते। मुख्तसर बात आ सकती है, लेकिन मुकर्ररा बात जो तय की गई बात करने के लिए, वो क्या है, बहुत ही मुनज़्ज़म बात समझी जाती है। अगला सवाल। तलबा मुख्तलिफ मतन पढ़ते और सुनते हैं, फिर काम को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे से मालूमात का तबादला करते हैं। ये रवां इमला कहलाता है। मतन का इमला आड़ी तिरछी लकीरों की जोड़ने का इमला और ज़रूरी इमला कौन सा है? यहाँ पर क्या है, तलबा मुख्तलिफ मतन पढ़ने और सुनते हैं, फिर काम मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे के मालूमात का तबादला करते हैं। एक दूसरे के मालूमात का, तो इसमें क्या है, आड़ी तिरछी लकीरों को जोड़ने का इमला है यहाँ पर सही जवाब है, आड़ी और तिरछी, क्योंकि रवानगी तो अभी नहीं आती उनमें। हाँ, ये मतन का इमला भी नहीं हो सकता, जरूरी इमला भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की क्या है, मालूमात का तबादला कर रहे हैं, तो आड़ी तिरछी लकीरों को जोड़ने का इमला, अपने मालूमात को तबादला कर रहे हैं, जोड़ियां लगा रहे हैं। ये सही जवाब है। अगला सवाल। एक उस्ताद नोट करता है कि 7वीं जमात के तलबा को कहानी को दोबारा बयान करने में परेशानी होती है। कहानी को, इसकी बात भी रवा नहीं है, और क्लास में बहस किए गए अल्फाज के माने भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस जबान की इस परेशानी को क्या कहते हैं? जबान की इस परेशानी को, यहाँ पर देखिए चंद अल्फाज मौजूद हैं। पहला है डिसफेजिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा डिस्प्लेक्सिया, चौथा डिस्कैलकुलिया। तो इन चारों को भी हम बितरतीब जानेंगे। हाँ, देखिएगा यहाँ पर डिस डिस्फेक्सिया का मतलब दिमागी बीमारी और तकरीर की पैदावार में कमी। इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर बच्चा दिमागी तौर पर उसके माने नहीं समझ पा रहा, और तकरीर बयान बात को रवां से क्लासरूम में बहस के लिए काबिल नहीं है। तो इस लिहाज से क्या है, उसे परेशानी है। इसलिए क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो बाकी के देखिए, डिस्ग्राफिया, ग्राफ निकालना मतलब लिखने से मुतल्लिक है।
लिखने में कमजोरी, ग्राफ लिखने में कमजोरी, याद रखिएगा, ग्राफ मतलब लिखने में कमजोरी। हाँ, डिस्प्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया यानी मजबूत हरकत, मजबूत हरकत को अंजाम देने में, अंजाम देने में क्या है, दुश्वारी होना, कोई काम उन्हें हाथों से करने के लिए दिया जाता है, उस काम में दुश्वारी होना। हाँ, जिसे तरक्याती कोऑपरेशन डिसीज भी कहा जाता है, तरक्याती कोऑपरेशन डिसीज। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से मतलब है, कैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशन से, जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, इससे मतलब यानी हिसाबी अमल में कमजोरी है। हाँ, तो ये इस तरह से चारों भी आते हैं। तो इन चारों को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। ये सवाल हर बार हर इम्तिहान में, सीटीटी हो या कर्नाटक टीटी हो, हर इम्तिहान में दोहराया जाता है। इनमें से कोई ना कोई एक, किसी न किसी एक पर सवाल जरूर आता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है देखिए, हर सेमेस्टर के मुख्तलिफ, हर सेमेस्टर के ख़त्म होने पर उस्ताद तलबा की लिसानी महारतों की जांच करता है। लिसानी, सुनने की महारत याद रखिएगा, लिसानी मतलब सुनना। इससे उस्ताद को मदद मिलती है तलबा की लिसानी अहलियत की जांच में, या ज़बान की आमूजिश की सलाहियत की जांच में, या उनके नंबरात देने में, या दरसियाती मकासद के तयन करने में। किस में मदद मिलती है? तो हमें पता चलता है कि लिसानियाती महारत की जांच लिसानियती अहलियत की जांच होती है। लिसान, सुनने के कितने काबिल हैं बच्चे, अहलियत मतलब काबिल, तो इसकी जांच होती है। तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला सवाल, जबान की क्लास में अंदाजा कदर होना चाहिए, ये जानने के लिए कि उन्होंने मतन से मुतालिक सवालों के जवाब की आमोजिश की है या नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता 100% जवाब। तदरीसी आमोजिश अमल के दौरान अंदाजा कदर कब होना, अंदाजा कदर होना चाहिए तदरीसी आमोजिश के अमल के दौरान, ये जानने के लिए कि उस्ताद पढ़ाने में कितना मौसर है। ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ मतन के मुकम्मल होने के बाद, मतन के मुकम्मल होने के बाद क्या है, कदर पेमाई होना मुनासिब नहीं। ये सी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के खिलाफ है। ये चौथा जुमला, ये क्या है, तदरीसी आमोजिशी अमल के दौरान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, कोड को मिलाने और अलग करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? कोड को देखिएगा, कोड कौन सा, कोड मिलाना उस वक्त होता है जब कोई अपनी बातचीत में बेक वक्त दो या दो से ज्यादा जायद जबान के अल्फाज इस्तेमाल करता है, और कोड अलग करना उस वक्त होता है जब कोई अपनी बातचीत में एक लफ्ज या मुहावरा दूसरी जबान का इस्तेमाल करे। हाँ, या कोड मिलाना और अलग करना एक दूसरे के मुतरादिफ है। या कोड मिलाना उस वक्त होता है जब कोई अपनी बातचीत में एक लफ्ज या मुहावरा दूसरी जबान का इस्तेमाल करे। देखिएगा, कोड मिलाना क्या है, अपनी बातचीत में दूसरी जबान का लफ्ज इस्तेमाल करना है। और कोड को अलग करना उस वक्त होता है जब कोई बातचीत में बेक वक्त दो या दो से ज्यादा जबानों का इस्तेमाल करे। ये कोड को अलग करना है। तो इस लिहाज से क्या है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। कोड मिलाना और अलग करना सिर्फ एक जबान जानने वाला है, तो ये तो नहीं है। तो इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, दर्ज झेल में कौन सा बयान पढ़ने और लिखने की महारतों के माबैन रिश्तों को जाहिर करता है? पढ़ने और लिखने की महारत, जो बच्चा लिख नहीं सकता वो पढ़ भी नहीं सकता, गलत। पढ़ने लिखने की महारतें बाहम मजबूत हैं। पढ़ना और लिखना अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी एक ही में माहिर है तो वो दूसरे में भी यकीनी तौर पर माहिर होता है।
तो देखिए, पढ़ना और लिखने की महारतें बाहम मजबूत हैं, पढ़ने की और लिखने की। जो बच्चा सही तरीके से पढ़ सकता है वही सही तरीके से लिख सकता है, पढ़ने वाले सही तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पढ़ना और लिखने की महारतें बाहम रिश्तों को जाहिर करती हैं। और सुनना और बोलना क्या है, ये इसी तरह से सवाल आ सकता है कि दस झील में से कौन सा बयान सुनना और बोलने की महारतों के माबैन रिश्तों को जाहिर करता है। तो उसमें क्या है, सुनना और बोलने की महारतें बाहम मजबूत हैं, वो दोनों बाहम मजबूत हैं। जो तलबा सही तरीके से सुन सकते हैं वही सही तरीके से बोल सकते हैं, और जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं वो सही तरीके से लिख भी सकते हैं। ये क्या है, आपस में रिश्तों का माबैन है इन महारतों का, याद रखिएगा। अगला सवाल, उस्ताद तलबा से खत कशीदा अल्फाज को सही मुतबादिल से बदलने के लिए कहता है, वो किस महारत की जांच कर रहा है? सुनने की, लिखने की, या पढ़ने या मतला करने की? किस महारत की? मतला करने की, मतलब अशार में आता है। इसमें यहाँ पर देखिएगा, अल्फाज के सही मुतबादिल बदलने के लिए कहता है, तो इसकी कौन सी महारत की जांच नहीं हो रही है? याद रखिएगा, महारत की जांच नहीं हो रही है। यहाँ पर सुनने की महारत भी आती है और लिखने भी आती है, पढ़ता भी है बच्चा, लेकिन चौथा नहीं करता। चौथा क्या है? मतला करना। मतला करना मतलब, मतला का मतलब है, मतले का मतलब है आगाह करना, आगाह करना, आगाह करना, यानी सिर्फ आगाह करना, बोलना नहीं है। पर मौलिम क्या कर रहा है? बदलने के लिए कह रहा है, इसलिए ऐसे चौथा ऑप्शन सही है जवाब। अगला सवाल, लिखने के अमलियाती इकदाम हैं, लिखने के अमलियाती इकदाम कौन से हैं? देखिएगा, हाँ, लिखने से कब्ल मसूदा तैयार करना। वहां पर मैं अभी भी गुज़िश्ता क्या इससे पहले वाले सवाल की परिचय में यही सवाल आया था, पहला मरहला कौन सा सिर्फ पूछा गया था, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, तो मैंने क्या है इसी तरतीब से आपको कहा था। हाँ, याद रखिएगा। हाँ, ये क्या है, पहले नंबर पर आता है मसौदा तैयार करना, दूसरे नंबर पर नजरसानी, तीसरे नंबर पर एडिटिंग, चौथे नंबर पर और आखिरी नंबर आता है इशात करना। तो ये पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। हाँ, इसी तरीके से सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, मखसूस हकाइक के मुताले के लिए पढ़ना है। मखसूस हकाइक के लिए, हकाइक के मुताले के लिए पढ़ना है। तो ये भी क्या है, दोहराया गया है, गायराना मुतालिया, इसमें सही जवाब है। पिछले सवाल क्या हुआ, 2024 के सवाल परिचय में यही सवाल वहां पर भी आया है, इसके बारे में बहस कर चुके हैं। अगला सवाल, क्लास में समाजी जबान के फरोग के लिए उस्ताद, क्लास में समाजी जबान को फरोग देना है, तो बच्चों से यौम इत्तिफाल पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहना है, या बच्चों को अपने हमजोलियों से तामुल का मौका देता है, तामुल का, हाँ, या बच्चों को अपनी यौम पैदाइश के लिए दावतनामा तहरीर करने के लिए कहता है, या बच्चों से मुकर्ररा मतन की तलखीस के लिए कहता है। तलखीस करना मतलब मतन को लिखना। तो इसमें क्या है, सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। क्या है, बच्चों को अपने हमजोलियों से तामुल का मौका दिया जाता है। समाजी जबान को फरोग देना मतलब अपने हमजोली, अपने साथियों के साथ तामुल करना, मिलजुल कर काम करना। यहाँ से क्या है, समाजी जबान का फरोग होता है। अगला सवाल, उस्ताद से क्लासरूम की लाइब्रेरी से कहानी की एक किताब लेने और इनफरादी तौर पर पढ़ने के लिए कहता है उस्ताद तलबा को। तो वो तलबा में फ़रोग देना चाहता है, क्या देना चाहता है? तफसीली मुतालिया, या तोसी मुतालिया, तनकीदी मुतालिया, या साझा मुतालिया? कौन से मुतालिया को मौलिम फ़रोग देना चाहता है? यहाँ पर क्या है, तोसी मुतालिया, उनके मुतालिया में तोसी करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल, छठी जमात का उस्ताद तलबा का इमला और तलफ़ुज़ बेहतर बनाने के लिए क्लासरूम में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करता है, उससे उसके तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। ज़बानी से पढ़ने में, या सुनने की महारत को फ़रोग देने में, दुरुस्तगी को बढ़ाने में, लफ्ज़ियात को बढ़ाने में, कौन सा फ़ायदा पहुँचेगा? किस अमल से
طلبہ میں املا اور تلفظ کا صحیح رجحان پیدا ہوگا۔ تو اس میں کیا ہے، درستگی بڑھانے میں، جو غلطی کرتے ہیں بچہ ان کو کیا ہے، درست کرنے میں، بتانے میں، درستگی بڑھانے میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپشن صحیح ہے۔ ہاں، تو اب ہم آتے ہیں اس کے بعد 13 تاریخ کو چلنے والے امتحانات، 13/1/2023 کو چلنے والے امتحان۔ ہاں، دیکھیے گا کیا ہے، قواعد کی مؤثر کیا ہے، قواعد کی مؤثر تدریس کے حوالے سے درج ذیل میں کون صحیح نہیں ہے، کون صحیح نہیں ہے؟ مناسب اور موضوع ترسیل میں کلیے کی پیشکش، سیاق میں قواعد کے موضوع اصولوں کی وضاحت، سیاق و سباق میں، سیاق مطلب موقع محل کے حساب سے، پہلا کیا ہے، مناسب اور موضوع ترسیل میں کلیے کی پیشکش، دوسرا سیاق میں قواعد کے موضوع کے اصول کی وضاحت، تیسرا اصل زندگی جیسی ترسیل میں مشتمل کلیوں کی فراہمی، چوتھا مشق کے ذریعے اصولوں کی یاد کر کے قواعد کی آموزش۔ دیکھیے گا، مشق کر کے اصولوں کو یاد کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کیا ہے، کون سا صحیح نہیں ہے قواعد کے مؤثر تدریس میں، کیا ہے، چوتھا آپشن صحیح نہیں ہے۔ یہ تینوں کر سکتے ہیں، چوتھا آپشن نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں۔ اگلا سوال، جب ہم مخصوص معلومات کے حصول کے لیے کسی متن کو پڑھتے ہیں تو یہ ڈیش کہلاتا ہے، سرسری جائزہ، غائرانہ، مروائے ادراج یا ارتشاح اور تحریر، کون سا ہے اس میں؟ اس کے بارے میں بھی ہم، یہ بھی سوال پچھلے جو ابھی میں نے 2 سوالات آپ کو حل کروایا اسی میں بھی اس کا جواب ہے، غائرانہ مطالعہ، گہرا مطالعہ۔ ہاں، اگلا سوال، ہم بنیادی طور پر مادری زبان کا اکتساب کرتے ہیں رسمی آموزشی ماحول میں، یا اسے بول کر، یا اسے سن کر، یا اسے لکھ کر، یعنی مادری زبان ہم کس طرح سے سیکھتے ہیں؟ ہم مادری زبان کیا ہے، اسے سن کر سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مادری زبان رسمی طور پر نہیں پڑھائی جاتی، ہمیں بولتے بھی نہیں، ہم آپ کو کوئی بھی لکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہمیں بآسانی سن کر کیا ہے سیکھ جاتے ہیں مادری زبان۔ تیسرا اگلا سوال، قواعد کا کون سا نظریہ اس عقیدے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ زبان کی آموزش کا تعلق اصولوں کی آموزش سے ہے؟ زبانی کی آموزش کا تعلق اصولوں کی آموزش سے ہے۔ استخراجی طریقہ، استقرائی طریقہ، ترسیلی طریقہ، قواعد کا طریقہ۔ تو اصولوں کے حساب سے کیا ہے، پہلا استخراجی طریقہ ہے، جو پہلے اصول بتائے جاتے ہیں، بعد میں اس کو کی مثالیں بتائی جاتی ہیں، یہ استخراجی طریقہ ہے قواعد کے حساب سے۔ اگلا سوال، استاد اپنے طلباء کے کم گریڈ کو جاننے کے لیے ایک ٹیسٹ لیتا ہے، اس ٹیسٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشخیصی جانچ، اہلیتی جانچ، حصولیابی کی جانچ، صلاحیت کی جانچ۔ تشخیصی، اہلیتی، حصولیابی یا صلاحیتی کی کون سی جانچ کہلاتا ہے؟ یہ کیا ہے، تشخیصی جانچ، گریڈ کے متعلق، جو سال کے یا ٹرم کے ختم ہونے پر لیا جاتا ہے، تشخیصی جانچ ہے۔ اگلا سوال، ہاں، استاد اخبار کی ایک رپورٹ کا استعمال لکھنے کے بارے میں پڑھانے کے لیے کرتا ہے، لکھنے کے بارے میں کیا ہے، پڑھانے کے لیے کرتا ہے، ایک رپورٹ کا استعمال پڑھانے کے لیے استعمال کیے گئے اس طرح کے مواد کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیمی مواد یا تفریحی مواد، مستند مواد یا خارجی مواد، کون سا مواد کہلاتا ہے؟ ہاں، تو کیا ہے، مستند مواد کہلاتا ہے، سند والا، مستند مطلب سند والا، ثبوتوں والا مواد کہلاتا ہے، جو اخبار کی رپورٹ کا استعمال کر کے لکھنے کے بارے میں پڑھانے کے لیے جو استعمال کرتا ہے وہ مستند مواد کہلاتا ہے۔ تیسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال، لحن یا ترنم میں تبدیلی کا نام آواز، سر، عضو، ہوا، کون سا ہے؟ لحن میں، لحن میں کیا ہے،
सुर का तब्दीली होती है, आवाज की नहीं, सुर। सारी गा जो कहते हैं सुर, तो वो क्या है, सुर की तब्दीली होती है। अगला सवाल, क्लासरूम में मादरी जबान के इस्तेमाल से मुमानियत डैश के तरीके की बुनियादी खसूसियत है। रास्त, लिसानी, जू लिसानी, कवायद के इतलाक़ात और आर्ट से मरबूत आमोजिश। यानी मादरी जबान के इस्तेमाल से मुमानियत करना, यानी मना करना मादरी जबान को इस्तेमाल करने से, ये कौन सी तरीके की खसूसियत है? ये क्या है, रास्त तरीके की खसूसियत है, जो रास्त पढ़ाया जाता है। सीधी सीधे क्या है, जो जबान हम जिस जबान में पढ़ रहे हैं उसी जबान का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर मादरी जबान का की दखलंदाजी नहीं होती, उसको रास्त तरीका बोलते हैं, रास्त, सीधी जबान। मिसाल के तौर पर अगर हम अंग्रेजी जबान पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ अंग्रेजी में ही बोला जाता है, यहाँ तक के बच्चों के साथ जो भी कलाम किया जाता है, समझाया जाता है, अंग्रेजी जबान ही में पढ़ाना, वो रास्त तरीके से कहा जाता है। और मादरी जबान का इस्तेमाल करके पढ़ाना, वो जू लिसानी तरीका कहलाता है, जू लिसानी, क्योंकि यहाँ पर मादरी जबान का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, तशखीसी जांच की जाती है। तशखीसी जांच क्या है, की जाती है मसाइल को हल करने के मकसद से, तलबा की कमजोरियों को मालूम करना, या मखसूस प्रोग्राम के लिए तलबा की मौजूनियत का अंदाजा लगाना। मखसूस प्रोग्राम नहीं हो सकता, मुलाजिमत की फराहमी के लिए महारत की जांच तशखीसी जांच नहीं है। तलबा की सलाहियतों के बारे में फैसला लेना, फैसला भी लेना मुनासिब नहीं है, इसलिए ऐसे पहला ऑप्शन, उनकी कमजोरियों को मालूम करना ताकि आगे आने वाले तदरीस में उनको सुधार सके। अगला सवाल, तय्युन कदर के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तय्युन कदर के दुरुस्त नहीं है, याद रखिएगा, दुरुस्त नहीं है। तय्युन कदर का ज्यादा जामिया अमल है। तय्युन कदर का क्या है, ज्यादा जामिया अमल है। या तय्युन कदर कीमती और किफायती दोनों होता है, कीमती हो सकता है, किफायती हो सकता है। तय्युन कदर का ताल्लुक तदरीसी आमोजिशी अमल की पैमाइश है, ये भी है आमोजिशी अमल की, तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। इसलिए ऐसे तलबा को उन खूबियों और कमजोरियों के बारे में फीडबैक देने के लिए तय्युन कदर किया जाता है। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनको फीडबैक देने की जरूरत नहीं है कमजोरियों को, हमें क्या है, सिर्फ मौलम जान सकता है, तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल, जबान की तदरीस के तामीरियत पसंद नजरिए के तहत, तामीरियत पसंद नजरिए के तहत एक उस्ताद से तवक्का की जाती है कि वो आमोजकारों को माक़ाबिल तामीर मालूमात फराहम करे, अपनी दर्सियात वज़ह करे, आमोजकारों से अपनी दरसी किताब तैयार कराए। तामीरियती नजरिए में देखिएगा, तलबा के तजुर्बात से मालूमात की तामीर में आमोजकारों की मदद करे। ये देखिए, तजुर्बात का जहाँ इस्तेमाल आता है वहाँ तामीर का लफ्ज़ आना चाहिए, तो उस वक्त क्या है, ये जवाब सही हो सकता है। तामीरत पसंद नजरिया क्या है, तजुर्बात से होता है, तो इस लिहाज से क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, पढ़ने से कबल के किए जाने वाले कामों का मकसद क्या है? आमोजकारों को पढ़ने की महारत का तय्युन कदर या मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मानी बताना। क्या कहा जा रहा है, पढ़ने से कबल की जाने वाली काम के बारे में आमोजकारों को मरकजी ख्याल से मुतारफ कराना और उन्हें तरगीब देना, आगे बढ़ाना। पढ़े जाने वाले मतन में मुस्तअमल कवायद उसूलों की वजाहत करना। तो इसमें क्या है, पढ़ने से कबल के हिसाब से यहाँ पर आमोजकारों को मरकजी ख्याल से मुतारफ कराना और उन्हें तरगीब करना कि ये सबक हमें पढ़ना है, तो ये जवाब सही है, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन तरसील को दौरी अमल कहा जाता है? दौरी अमल, दौराना, तरसील का दौरी अमल, मुरस्सिल, वसूल कुनिंदा, फीडबैक, पैगाम। तो इसमें दौरी करने वाला फीडबैक है, हमें क्या है,
पता चलता है, फीडबैक करने के बाद क्या है, फिर पता चलता है कि हमारी कमजोरियां क्या है, तो उसे दोहराते हैं, दोहरी अमल कहलाता है। अगला सवाल, उस्ताद पहले मिसालें देकर इस्म की वजाहत करता है, फिर उसकी तारीफ बयान कर बताता है, इस तरीके को क्या कहते हैं? पहले मिसालें, बाद में उसकी तारीफ। देखिएगा, इस्तिक़राई, इस्तिक़राजी, इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी दोनों रास्त तरीका, यहाँ दोनों भी नहीं होता, रास्त भी नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इस्तिक़राई तरीका है, क्या है? इस्तिक़राई तरीका, क्योंकि यहाँ पर पहले मिसाल दी जाती है, हाँ, बाद में क्या है, उसूल इस्तेमाल किया जाता है। क्या? उसूल बाद में, पहले मिसाल बाद में उसूल। लेकिन ये जवाब सही है इसमें। और इस्तिक़राजी तरीके में इसका उल्टा, पहले उसूल होता है, उसके बाद मिसाल होती है, वो इस्तिख़राजी तरीका है, याद रखिएगा। अगला सवाल, हाँ, जब ज़बान की तदरीस के लिए उस्ताद साइंस और समाजी उलूम के असबाक का इस्तेमाल करता है, साइंस और समाजी उलूम का, तो उस अंदाज़ा नज़र को कहा जाता है क्या? ज़बान की मारूज तदरीस, ज़बान की तकसीर तदरीस, ज़बान की मजमून के एतबार से तदरीस, दरसियात से परे ज़बान, कौन सा है इसमें? तो इसमें क्या है, हमें साइंस और समाजी उलूम के असबाक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दरसियात से परे ज़बान कहलाते हैं, दरसियात से परे ज़बान, और सबक से अलग होता है ना, इसलिए क्या है, परे ज़बान का इस्तेमाल करना कहलाता है। अब हम आते हैं 12 तारीख 12/1/2023 को चलने वाले सवालाती परिचय की तरफ। 'बग़ैर मुतालिया एक महारत है जिसका मतलब बग़ैर, हमने देखा बग़ैर मतलब गहरा, देखो सवाल यहाँ पर किस तरह से आया, बग़ैर यानी गहरा, लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ना नहीं, एडिटिंग के लिए पढ़ना नहीं, कौन सा पढ़ना, या मतन को गहराई के साथ समझने के लिए पढ़ना, या मतन के मजमूई ख्याल को समझने के लिए, मतन के मजमूई ख्याल, याद रखिएगा, मजमूई ख्याल को समझने के लिए जो मुतालिया कहा जाता है वह गहरा मुतालिया होता है, यानी बग़ैर मुतालिया होता है। पहला, चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला सवाल, मुफस्सिल मालूमात के लिए किसी मतन को पढ़ना है, मुफस्सिल तफसीली मालूमात के लिए किसी मतन को पढ़ना है, कौन सा, तौसी मुतालिया, हाँ, या माफ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गहराई जो आया है, मतन को गहराई के साथ समझने के लिए पढ़ना, ये बग़ैर मुतालिया है, बग़ैर मुतालिया मतलब मतन को गहराई के साथ समझने के लिए पढ़ना है, ये ऑप्शन सही है इसमें, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा वो कुछ गलती से होगा, ये ऑप्शन सही है की आंसर के हिसाब से। अगला सवाल, मतन मुफस्सिल मालूमात के लिए किसी मतन को पढ़ना, तफसीली मालूमात के लिए, तवसी मुतालिया, लुत्फ के लिए मुतालिया, पढ़ने का अमल, या बग़ैर मुतालिया। देखिएगा बग़ैर, यहीं पर यहाँ पर दो मरतबा एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, बग़ैर मुतालिया क्या है, इसका सही जवाब है बग़ैर मुतालिया, मुफस्सिल मालूमात के लिए, तफसीली मालूमात के लिए। लिखने के अमल में मसूदा साजी डैश के बाद होती है, डैश के बाद होती है, हमने देखा था सबसे पहले क्या है इसमें, जहनी खाका साजी था पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर पहले नंबर पर आता है मनसूबाबंदी, उसके बाद नज़रसानी, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद दोबारा लिखना, चौथे नंबर पर आता है। तो ये दो तीन सही तरतीब से हैं, लेकिन मसूदा तैयार करना क्या है, यहाँ पर आता है मनसूबाबंदी के बाद मसूदा तैयार करना आता है। तो क्या है इसमें, पहला ऑप्शन सही है, मनसूबाबंदी के बाद क्या है, ये मसूदा तैयार करना आता है।
तो पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, लिखने के अमल के इकदामात इशाअत के साथ ख़त्म होते हैं, जहन की नक्शाबंदी के साथ ख़त्म होते हैं, गौर व खौस के साथ ख़त्म होते हैं, या नज़रसानी के साथ ख़त्म होते हैं। लिखने के अमल का इकदाम कब ख़त्म होता है? इकदामात तो क्या है, इशाअत के साथ ख़त्म होते हैं। जब इशाअत किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, तो लिखने का काम कम हो जाता है। इस लिहाज से क्या है, पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, आज़ादाना तौर पर लिखने को एक ऐसी तहरीर करार दिया जा सकता है जो किसी माखज़ से मुस्तआर हो, उधार लिया गया हो, शायरी हो जाए, या रूल के बारे में सोचे बगैर जो कुछ जहन में आए उसे लिखना, या किसी जरीदे में मुकम्मल मुफस्सिल बयान। कौन सा है इसमें? तो इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन देखिए, आज़ादाना तौर पर लिखने की तहरीर क्या है, रोल के बारे में सोचने बगैर जो कुछ जहन में आए उसे लिखना है, बगैर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, जबान का उस्ताद माने को समझने के बजाय जुमलों के पैटर्न को याद करने पर जोर देता है, वो बरत रहा है क्या? कवायद को बरतने का तरीका, तरसीली अंदाज़ा कदर, रास्त अंदाज़ा कदर, साख्तियाती अंदाज़ा कदर। कौन सा है इसमें? तो इसमें क्या है, साख्तियाती अंदाज़ा कदर है। साख्त को क्या है, जुमलों को समझने के बजाय क्या है, पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। साख्तियाती में क्या है, पैटर्न का इस तरह से याद करना है, जैसे फार्मूले कहते हैं, फार्मूले तरीके से, वो साख्तियाती कहलाता है। साख्त के तरीके से साख्तियाती तरीका है। अगला सवाल, जबान में आवाज की सबसे छोटी बामानी इकाई कौन सा है? ये दोबारा पूछा गया है। जबान की आवाज में सूतियाती तरीका है। अगला सवाल, उस्ताद का मानना है कि इंसान जिस तरह अपने तजुर्बा से दूसरी महारतें और सलाहियतें हासिल करते हैं, इसी तरह जबान भी सीखते हैं। जबान भी सीखते हैं। वो किस नज़दीक साजी की तायद करता है? किस नज़दीक साजी की तायद करता है? आठवां सवाल है, तो ये है स्किनर का नजरिया। किसका है? स्किनर का। अगला सवाल, आसान फिक्रों, बुलंद लहजे और लहन में तब्दीली के साथ छोटे बच्चों से बातें करना डैश की मिसाल है। ज़रूरत से ज़्यादा तामीम की, लिसानियाती बातचीत की, तुतलाने की, तुफल मरकज़ बातचीत की। कौन सी है ये? आसान फिक्रे, बुलंद लहजे और लहन तरन्नुम के साथ, तो वो क्या है, तुफल मरकज़ बातचीत की है। क्या है? तुफल मरकज़, बच्चे की। अगला सवाल, आमोजिशी नक्ल से नक्श में है जो लफ्ज़ों की आवाज़ को पहचानने पर असरअंदाज होती है। क्या? लफ्ज़ों की आवाज़ को पहचानने पर असरअंदाज होती है और पढ़ने में परेशानी होती है। पढ़ने में परेशानी, पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ग्राफ लिखने से मुताल्लिक है, गुज़िश्ता सवाल परिचय में देखिए में। अफेशिया, अफेशिया देखेंगे। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया हिसाब से मुताल्लिक। तो यहाँ पर सवाल है डिसलेक्सिया, क्या है? लफ्ज़ों की आवाज़ और पढ़ने में कमज़ोरी। तो यहाँ पर हमने क्या है, तमाम को जाना। डिसग्राफिया लिखने से मुताल्लिक, डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक, आवाज़ को पहचानने में कमज़ोरी, और डिसकैलकुलिया हिसाब से मुताल्लिक। डिस्फेसिया का मतलब है क्या, बातचीत में कमजोरी, गुफ्तगू का कमजोरी। जो जबान में क्या है, जबान में क्या है, खराबी है। कैसी खराबी? गुफ्तगू करने में, गुफ्तगू करने में या बातचीत करने में जो खराबी होती है उसको अफेसिया कहा जाता है। अफेसिया, गुफ्तगू करने में। तो ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल हम आते हैं। अगला सवाल है, छठी जमात का तालिब इल्म तलफ़ुज़ की गलतियां करता है। तलफ़ुज़ की गलतियां, उस्ताद उसकी मदद कर सकता है कैसे? उससे उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना,
یہ تو غلط بات ہے، شکایت تو نہیں کی جا سکتی۔ غلطی کرتے ہی بچے کو روک کر اس کی اصلاح کرنا، بچہ جب یہ کام مکمل کر لے تو اس کی صحیح تلفظ بتانا۔ دیکھیے فوراً کیا غلطی کرنے پر کیا اسے روک کر بتلانا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے کیا ہے یہاں پر دیکھیے گا بچہ جب یہ کام مکمل کر لے تو اس سے صحیح تلفظ بتائے کہ اس کو اس طرح سے تلفظ نکالا جا سکتا ہے، تو یہ تیسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال، چھپائی کے اعتبار سے ثروت مند ماحول کو بچے کی زبان کی آموزش میں بہت مفید ہے۔ ثروت مند مطلب فائدہ پہنچانے والا، مفید ہے۔ اس طرح کی ماحول سازی کی ایک بہترین مثال بچہ رنگ برنگ کی کتابیں فراہم کرے، یا کلاس روم میں اور اسکول کی دیواروں پر دلچسپ کہانیاں، نظموں اور بچے سے متعلق معلومات چسپاں کریں، یا استاد کو رنگین اصول نامے، معاون کتب اور رہنما کتب فراہم کریں۔ بچوں کو تھمب پرنٹنگ، اسکرین پرنٹنگ کی دوسری سرگرمیاں فراہم کر کے تخلیقی کاموں کے موقع فراہم کریں۔ تو اس میں کون سا ہے؟ تو سب سے بہترین کیا ہے؟ اسکول کی دیواروں پر دلچسپ کہانیاں، نظموں اور بچے سے متعلق معلومات چسپان کرنا کیا ہے؟ یہ ثروت مند ماحول جو زبان کی فروغ میں، آموزش میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال، NIPUN یعنی بھارت مشن کے مطابق نپن بھارت مشن کے مطابق اہداف یعنی مقصد، FLN فرسٹ لینگویج لرننگ کے مطابق مقاصد کی آموزش کو تمام ریاستوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ درجہ اول میں سمجھ کو پڑھنے کے لکشیہ کیا ہے؟ فی منٹ 45 سے 60 لفظوں کو بامعنی کے ساتھ پڑھنا، یا کم از کم 2 باتیں حرف پر مشتمل آسان لفظوں کو پڑھنا، کم از کم 4 یا 5 الفاظ پر مشتمل جملوں کو پڑھنا، یہ جملے عمر کے مطابق ہوں اور نامعلوم متن ہوں، فی منٹ کم از کم 6 لفظوں کو معنی کے ساتھ پڑھنا۔ کون سا جواب صحیح ہے اس میں؟ تو اس میں کیا ہے صحیح؟ کیا ہے؟ تیسرا آپشن ہے، کم از کم 4 سے 5 الفاظ پڑھنا جو بچوں کی عمر کے مطابق ہو اور انہیں نامعلوم متن سے ہو۔ تو یہ نپن بھارت کے مطابق کیا ہے؟ FLN کا مقصد ہے۔ اگلا سوال، پڑھنے کی کس تکنیک کا استعمال کسی امتحان میں موضوع کی آموزش کے لیے کیا جاتا ہے؟ توسیع، تغیر، مفصل، سرسری، کون سا ہے اس میں؟ تو دیکھیے گا بغیر کا زیادہ تر استعمال ہوا ہے، یہی جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک استاد اپنے طلباء کے لکھنے میں مہارت کی پیش رفت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے مؤثر اعلی کار کیا ہے؟ انٹرویو، ریبورک، پورٹ فولیو، از خود اندازہ قدر، کون سا ہے اس میں؟ اس میں کیا ہے؟ پورٹ فولیو کیا ہے اس میں جو لکھنے کی مہارت کی پیش رفت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں 11 تاریخ کو ہونے والے سوالاتی پرچے کی طرف۔ 11 تاریخ یہاں پر 7ویں جماعت میں ایک نظم پھول پتیا پڑھنے کے بعد استاد طلبہ سے مختلف سوکھی پتیوں کی مدد سے مختلف جانوروں کی تصویریں بنانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ ڈیش کرتا ہے، کیا اپنا کام ختم کرنے کے لیے طلبہ کو سرگرم کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کام ختم کرنے کے لیے بچوں کو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا۔ زبان کو آرٹ کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے گا سب سے اہم ہے، زبان کو کیا ہے؟ آرٹ کے ساتھ جانوروں کی تصویر بنایا جا رہا ہے، تو یہ دوسرا آپشن صحیح ہے۔ نفسی حد کی مہارت تو نہیں ہوتی وہاں پر۔ زبان کو جانوروں سے مربوط نہیں کیا جا رہا، وہاں پر کیا ہے؟ آرٹ، نئے شکلیں بنایا جا رہا ہے، تو دوسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال، ہندوستانی کلاس روم با اعتبار نوعیت کثیر لسانی ہوتے ہیں، کیا کثیر لسانی ہوتے ہیں، اسے ایک ماخذ کے طور پر برتا جانا چاہیے۔ کیا ہر بچہ ایک ہی انداز میں سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بچے مختلف زبانوں سے آگاہ ہوتے ہیں،
बच्चे मुख्तलिफ ज़बानों से आगाह होते हैं। उस्ताद मुख्तलिफ ज़बानों में महारत को फ़रोग देना चाहिए। हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। देखिएगा, हर बच्चे एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला सवाल, बग़ैर मुतालिया, इसके मुताल्लिक़ पूछा गया है। बग़ैर मुतालिया की हिकमत अमली ज़ोर देती है, किस पर ज़ोर देती है? बग़ैर मुतालिया तफसीली, क्या है, तफसीली मालूमात के मतन को पढ़ने में ज़ोर देती है। अगला सवाल, बेहतरीन मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज झील बयान को मुकम्मल कीजिए। हंगामी काराइन के तस्वीरों का मुतालिया कीमती माखज़ हो सकता है। हंगामी काराइन के तस्वीरों का मुतालिया कीमती माखज़ हो सकता है। कहानी के वाक़यात के बारे में अहम इंदिए फराहम करना, अहम इंदिए। हाँ देखिएगा, काराइन यानी पढ़ने वाला, जिसका कारी का जमा है कारीन, के लिए तस्वीरों का मुतालिया कीमती माखज़ करता है। क्या? कहानी के वाक़यात के बारे में अहम इंदिए फराहम करता है। इंदिए मतलब राय, इंदिए का मतलब क्या है? राय पेश करना। या हाथ से लिखावट को बेहतर बनाने में माऊन होती है। इन्हें इन्हें पुरएतमाद और अच्छा लिखने वाला बनाने के लिए, या इन्हें सुनकर लिखने वाला बनाने के लिए। कौन सा जवाब सही है इसमें? तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन, यानी कहानी के वाक़यात के बारे में अहम इंदिए फराहम करना है। अगला सवाल, एक मौसर इक़्तिबास लिखने में शामिल है। एक मौसर इक़्तिबास लिखने में शामिल है। क्या? साफ और खुश खत होना चाहिए, मवाद में मुश्किल अल्फाज हों, ख्यालात की पेश और पेशकश और रब्त होना चाहिए। ये अहम है। देखिए, ख्यालात किस तरह से पेश किया जा रहा है और एक दूसरे के दरमियान किस तरह से रब्त कायम है, ये अहम है। तीसरा ऑप्शन सही है। खुशखत तो होना चाहिए, लेकिन क्या है सबसे अहम? पेशकश और रब्त, किस तरह से पेश किया जा रहा है और किस तरह से एक जुमले से दूसरे जुमले में, एक ख्याल से दूसरे ख्याल में राबिता कायम है, ये सबसे अहम है। छोटे बच्चे पेंसिल और कैरोन को सतह पर इधर उधर घुमाना पसंद करते हैं। और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कैरोन मतलब एक तस्वीरी शक्ल होती है, जब बच्चे वहाँ पर क्या है इस तरह से लिख कर क्या है उसमें शक्ल निकालते हैं। जैसे इख्तराई तहरीर, मुआसिर तहरीर, नकल नवीसी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा मेढ़ा लिखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? छठा क्या है? नकल नवीसी कहा जाता है। यानी बच्चा वहाँ पर देख कर क्या है नकल करता है। जैसे पेंसिल और कैरोन की सतह पर इधर उधर घुमाना कर लेते हैं। अगला सवाल, कुल जबान के अंदाज़ा नज़र का मुतालिया। कुल जबान अंदाज़ा नज़र का मुतालिया, अल्फाज को हुर्फ में बदलना और हुर्फ को जोड़ना, हुर्फ की आवाज़ के मुताल्लुकात को कायम करना, ज़बान के जुज़वी कुल के तौर पर अल्फाज को पर गौर करना। अंदाज़ा करने का मतलब क्या है? ज़बान के जुज़वी कुल के तौर पर अल्फाज को बगौर करना। एक तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, हदफ ज़बान की तदरीस के लिए उस्ताद बच्चे की मादरी ज़बान को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो बरत रहा है। हाँ, कौन सा तरीका बरत रहा है? ये पूछा गया है रास्त तरीका, सीधे सीधे बताया जा रहा है। सिर्फ क्या है उसी ज़बान का इस्तेमाल करता है, मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करता। अगला सवाल, सुनना डैश एक महारत है और दूसरे शख्स के कहे और उनके कहे पैगाम के मतलब का मुनासिब जवाब देता है। याद करने और समझने, समझने और तज्जिया करने, फैसला करने और तज्जिया करने की, फैसला करने और इम्तिजाज की, फैसला करने और इम्तिजाज की। हाँ, यहाँ पर देखिएगा इम्तिजाज के माने नहीं समझे, है ना? इम्तिजाज यानी मिलावट, क्या है? मिलावट की। इम्तिजाज का मतलब मिलावट आता है। इस लिहाज से क्या है यहाँ पर सही जवाब है समझने और तज्जिया करने की, समझने और
तज्जिया करने की। अगला सवाल, जबान की आमोजिश के लिसानियाती मवाद को बयान करने के लिए सबसे मौजू इस्तिलाह है, सबसे मौजू इस्तिलाह क्या है? मोहतात बनाना, यानी एहतियात से, मोहतात का मतलब एहतियात, एहतियात माफ कीजिएगा, एहतियात आता है, मोहतात का मतलब एहतियात आता है। बच्चा मरकूज, शेर ख्वार मरकूज, इब्तदाई सतह पर माँ और बच्चे की बातचीत। देखिएगा आमोजी लिसानियात, सब इसमें जबान की आमोजिश के लिसानी मवाद को बयान करने के लिए सबसे मौजू इस्तिलाह कौन सा है? मौजू इस्तिलाह क्या है? एहतियात बनाने वाला बयान। पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, एक बच्चा अपनी जिंदगी के अवाइल बरसों में, अवाइल मतलब अव्वल से आया, शुरू शुरू में, अवाइल बरसों में एक ऐसे माहौल में रहता है जहां बच्चे का साबिका जबान से बहुत कम या ना के बराबर होता है और उसकी जबान बहुत महदूद जबान में तरक्की करती है। दरअसल में से कौन मज़कूरा बाला बयान की तायद करता है? कौन सा करता है? हाँ? जुमलों का मसला, जबान का मानियाती मसला, तरक्की का एहसास अहद, मुकामियत का नजरिया। देखिएगा अवाइल वर्षों में क्या है, बच्चे जो जबान सीखते हैं तरक्की करते हैं, तो इस लिहाज से तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन पढ़ने की झीली महारत नहीं है? जब्त के साथ पढ़ना, राबिता बना के, कयास से आदाई करना, तकलीब करना, फहम व इद्दाक। कौन सा जवाब सही है इसमें? तो इसमें देखिएगा तकलीब करना यानी नकल नवेशी करना, वो क्या पढ़ने की महारत नहीं है। ये तीनों भी है, तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल देखिएगा, एक उस्ताद का मानना है कि बच्चों को बहुत सारे काबिल फहम मवाद देना चाहिए क्योंकि ये जबान के इक्तिसाब में माउन है। इसका अकीदा है, ये किसका अकीदा है? इसके बारे में सवाल एक दूसरे प्रश्न में भी पूछा गया था। तो इसमें क्या है सही अकीदा कौन सा है? वाइगॉट्स्की का समाजी तहजीबी नजरिया, या पेजे की वकूफ़ी तर्क की नजरिया, स्किनर की किरदार पसंदी का नजरिया, स्टेफन क्रैशन का जबान के इक्तिसाब का नजरिया। तो इसमें क्या है सही जवाब स्टेफन क्रैशन का जबान के इक्तिसाब का नजरिया है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, दर्ज में दर्ज झील में कौन तामीरियत पसंद क्लासरूम की खुसूसियत है? तामीरियत पसंद, देखिएगा तामीरियत पसंद हमने देखा था। तामीरियत पसंद के बारे में, बच्चे ग्रुप में तामुल करते हैं और क्लासरूम में बहुत कम आते हैं। हाँ, हाँ। बच्चे तख्त सियाह पर लिखे जवाब को खुद खुशखत अंदाज में नकल करते हैं। बच्चे उस्ताद को बगौर सुनते हैं। बच्चों को तजुर्बा का उस्ताद पढ़ाते हैं। तो 10 में से कौन तामीर पसंद क्लासरूम की खसूसियत है? तो यहाँ पर उस्ताद पढ़ाना और बगौर मुतालिया करना, उस्ताद को बगौर सुनना या खुशखत लिखना नहीं होता। बच्चे ग्रुप में तामुल करते हैं, मिलते हैं और क्लासरूम में बहुत कम शोर करते हैं। ये सही जवाब है तामीरियत पसंद के लिहाज से यहाँ पर। अगला सवाल, जबान की इजाफियत के नज़रिए की तायद इस नुक्ते नज़र से होती है? जबान के इजाफियत के नज़रिए की तायद, जबान फिक्र और तस्वुर को जाहिर करती है, ना कि तय्युद को। जबान जबान और तहजीब अलहदा अलहदा आवाज़ें हैं, ये तो नहीं है। जबान हमारी सोच और तस्वुर कायनात के तरीके का तयन करती है। ख्यालात की तश्कील में जबान का कोई किरदार नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर सही जवाब है पहला, जबान फिक्र और तस्वुर को जाहिर करती है, ना कि तयन करती है, फिक्र और तस्वुर को। तो इजाफियत का नजरिया ये बयान तायद करता है। तो पहला ऑप्शन सही है।
اور اس کے بعد ہم آتے ہیں 10/1/2023 کو چلنے والا سوالی پرچی کی طرف. لسانی کثیر لسانی آگہی کیا ہے؟ کثیر لسانی آگہی قواعدی اصول کی وضاحت کرنا، ہاں، یا قواعدی اصول کی وضاحت کرنا، اس کا مطالعہ کرنا کہ آموز کار کس طرح تیسری زبان سیکھتے ہیں اور مخصوص لسانی پیٹرن کو اپناتے ہیں، زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی اہلیت، آواز اور اس کے معنی کے مابین رشتوں کو سمجھنا. ہاں، تو اس میں کیا ہے؟ کثیر لسانی آگہی کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کثیر لسانی آگہی کیا ہے؟ ہمیں زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی اہلیت کی طرف آگہی کرتی ہے. اگلا سوال، وہ منظم عمل جہاں استاد پہلے طلبہ کی پریشانیوں کی تشخیص کرتا ہے اور پھر مناسب کیا کرتا ہے؟ تعاون کرتا ہے. حالاتی طریقہ نہیں، تعاونی طریقہ اپناتا ہے، تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے بچے کی. اگلا سوال، چھٹی جماعت کا استاد طلبہ سے درسی کتاب کے ایک باب کو دوبارہ پڑھنے اور لفظی معنی معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غائرانہ مطالعہ. ہم نے دیکھا تھا غائرانہ مطالعہ. اگلا سوال، نوم چومسکی کے مطابق بچے پیدائشی اعتبار سے زبان سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ڈیش صلاحیت رکھتے ہیں. کون سی ڈیش صلاحیت؟ وہ کیا ہے؟ عالمی قواعد کا اصول جو نوم چومسکی پیش کیا، عالمی قواعد کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون زبان کے اعتبار سے ثروت مند ماحول کے لیے درست ہے؟ ثروت مند ماحول ہم نے گزشتہ پیپر میں بھی دیکھا تھا، ثروت مند ماحول کے بارے میں. دیکھیں کیا ہے؟ یہ اسکول کی تعلیم کے دوران مختلف تہذیبوں کے سیکھنے میں معاون ہوتا ہے. یہ فی البدیہہ زبان کے نمو اور ارتقاء کی بنیاد فراہم کرتا ہے. فی البدیہہ یعنی فوراً جواب دینا. اور یہ آموزگاروں کی متنوع ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ زبان کے نظریات پر عبور حاصل کرنے میں معاون ہے. تو یہ کیا ہے؟ زبان دزل میں سے زبان کے اعتبار سے ثروت مند ماحول کون سا فراہم کرتا ہے؟ فی البدیہہ زبان ہے کہ نمو اور ارتقاء کی بنیاد فراہم کرنا ہی کیا ہے؟ یہ ثروت مند ماحول ہے. درست جواب ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. اگلا سوال کیا ہے ہمارا؟ ایک مؤثر استاد کے طور پر 8ویں جماعت کے طلباء کی زبان کو فروغ دینے کے لیے درج ذیل میں سے آپ کس پر سب سے زیادہ عمل کریں گے؟ ان کی سطح کو جاننے کے لیے مستقل ٹیسٹ لیں گے، یا نصابی کتاب سے زبان کی تدریس کریں گے، یا انہیں ہدف زبان میں بات چیت اور اظہار خیال کا موقع فراہم کریں گے، یا کاموں اور سرگرمیوں میں ریلیہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو اس میں صحیح جواب ہے انہیں ہدف زبان میں بات چیت کرنے اور اظہار کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. تیسرا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال، تشکیلی اندازہ قدر تعاون ہوتا ہے کیا؟ مدد کرنے والا ہوتا ہے. تشکیلی اندازہ قدر کلاس میں مسابقتی ماحول پیدا کرنے میں، تدریس میں استاد کی مہارت کے اندازہ قدر میں، بہتری لانے کے لیے آموزگاروں کو معیاری فیڈ بیک فراہم کرنے میں، یا ہفتے میں ٹیسٹ کے منعقد کرنے میں. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے. فیڈ بیک فراہم کرنے میں تشکیلی اندازہ قدر تعاون ہوتی ہے فیڈ بیک فراہم کرنے میں. اگلا سوال، کلاس میں بلند خوانی ایک ایسا طریقہ ہے جو آموزگاروں کو تیزی سے پڑھنے کے قابل بناتا ہے، درسی کتاب کو مل کر پڑھنے کے قابل بناتا ہے، یا آموزگاروں کو اپنی زبان کے انتظار کا
या आमोजगारों को रमूज और औकाफ की मदद से सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाता है। रमूज और औकाफ के साथ सही तलफ़ुज़ को पढ़ने के काबिल बनाना, ये सही जवाब है। अगला सवाल, एक उस्ताद मुतवक्का कलमकारों में लिखने की अच्छी महारतों को किस तरह फ़रोग़ देता है? मुतवक्का कलमकारों को लिखने की अच्छी महारतों को फ़रोग़ देना क्या है? मौज़ू और लफ्ज़ों की तादाद के बारे में वाज़ेह हिदायत देकर, मौज़ू और लफ्ज़ों के बारे में हिदायत देना, या आमोज़गारों के कामों की तारीफ़ करके और मज़ीद बेहतरी के लिए मखसूस तबसरा करना, या आमोज़गारों से खुश ख़त लिखने के लिए कहना। आमोज़गारों को सिर्फ कवायद की गलतियों पर मुफस्सिल फीडबैक देना। ये क्या है? कवायद की गलतियों के हिसाब से नहीं हो सकता। तो क्या है? तबसरा करना, उनकी तारीफ करना और तबसरा करना। ये मुतवक्का कलमकारों को अच्छी महारत फ़रोग़ दिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, तरसील ज़बान की तदरीस में तलबा को क्लासरूम में बामानी गुफ्तगू में शिरकत का मौका फराहम करने पर जोर दिया जाता है। बामाना गुफ्तगू में शिरकत करने का मौका फराहम करना कई के लिए तरसील ज़बान की तदरीस के लिए तलबा को क्लासरूम में ये फ़रोग़ देता है। क्लासरूम में आज़ादाना तौर पर मादरी ज़बान के इस्तेमाल का, पढ़ने में अपनी समझ और इदराक को फ़रोग़ देने का, तहरीरी इजहार को फ़रोग़ देने का, हदफ ज़बान में बातचीत करने की महारत को फ़रोग़ देने का। देखिएगा, तरसीली ज़बान जो क्लासरूम में इस्तेमाल की जाती है, गुफ्तगू करने का मौका देना, फराहम करना क्या है? हदफ ज़बान है। हदफ मतलब हमारा मकसद, जो ज़बान हम सीखने के लिए आए, तो ये हदफ ज़बान में बातचीत करने की महारत को फ़रोग़ देना है। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, बामाने बामाने मतन को पढ़ना एक सलाहियत है, यानी माने को समझने के लिए मतन के तमाम लफ्ज़ों को समझना, तहरीरी इशारों और अलामतों को उनके मुमासिल आवाज़ में बदलना, या रवानी के साथ पढ़ने के लिए हुर्फ को समझना और डिकोड करना, या मतन से तामुल के ज़रिए माने तामीर करना। देखिए, मतन से तामुल करके माने तामीर करना, माने समझ लेना, ये क्या है? सही जवाब है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, मतन के मुश्किल अल्फाज को हल करने के लिए ज़बान का उस्ताद पहले उन्हें मादरी ज़बान में बदलता है, फिर बच्चों से उन्हें याद करने के लिए कहता है। वो अमल करता है, कौन सा अमल करता है? कवायद के इतलाक़ के तरीके, रास्त तरीके, साख्तियाती तरीका, तरसीली तरीका। हमने रास्त, साख्तियाती, तरसीली देखा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कवायद के इतलाक़ का तरीका है। ज़बान का उस्ताद क्या करता है? पहले मादरी ज़बान में बदलता है, फिर बच्चों को उन्हें याद करने के लिए कहता है। ये कवायद के उसूल का तरीका है। अगला सवाल, आमोज़गार क्या है? आमोज़गार लिखने के का अमल शुरू करता है, तो पहला मरहला क्या है? गौर खौस, मसौदा तैयार करना, एडिटिंग करना, नज़रसानी करना। तो इसमें सही जवाब कौन सा है? तो कॉमन पता ही है आपको, सही जवाब गौर खौस करना, पहले सोचना क्या करना है करके। ये भी क्या है? पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, आमोज़गारों के अंदाज़ा कदर के दौरान ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कौन सी? आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में, मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, यूनिट टेस्ट लेने और उनकी कारकर्दगी को आंकने के लिए, उनका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। आंकना है ना, अंदाज़ा लगाना। ज़बान टेस्ट पर तवज्जो देने और अंदाज़ा कदर करने पर, प्रोजेक्ट वर्क पर देने पर। देखिएगा, आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करके मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करना, ये सही जवाब है। आमोज़गारों की अंदाज़ा कदर के दौरान बातचीत के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगला सवाल, ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? कौन सा बयान दुरुस्त है? दूसरी ज़बान की आमोजिश के दौरान अहले ज़बान की तरह हमें अल्फाज अदा करने चाहिए, या पहली ज़बान और दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुखल है, मुखल मतलब खलल पैदा करना,
پہلی زبان دوسری زبان کے سیکھنے میں معاون ہوتی ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے قواعد کی آموزش ضروری ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر صحیح جواب کیا ہے، پہلی زبان کیا ہے، دوسری زبان سیکھنے میں معاون ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح سے ہمارے چینل سے دیگر مضامین کے اوپر بھی کیا ہے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، آپ ہمیں فالو کرتے رہیے گا۔ اور مزید نوٹس اور معلومات کے لیے ہم ہمارے ٹیلی گرام چینل اور ٹیلی گرام گروپ اور فیس بک گروپ میں جوائن ہو جائے گا، آپ کو وہاں سے مزید نوٹس وغیرہ ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔